Okay, good morning, students. This is Dr. Mukul Jain, and we are studying our subject corporate tax planning. In corporate tax planning, we'll be studying about various kinds of tax planning for business firms, for partnership firms, for cooperative societies, for private limited companies, public limited companies, and of course for individuals also. Because unless and until we understand the individual taxation also, we will not be able to understand the other taxation aspects. So we will not spend much time on individual taxation, but however, I feel that you must know, even if you are, even corporate tax planning includes individual taxation, because you will have to uh, make the salaries of the people. You have to, today the onus is on the employers to deduct the tax of the employees, that is TDS, and make their give them form 16. So you will come to know what is form 16, what is form 16A. When you are a salaried person, you get a form 16 from your employer, stating that what is your salary and the tax deduction, etc., is done by the employer. If you are an independent consultant, you are doing some consultancy and you are taking a fees from somebody, then you get a form 16A. Last week we had talked about some basics, so extending some of these basics, we will first of all, let me give you the tax slabs. Some of you would be knowing the tax slabs, but once again, let us talk about tax slabs. Last time I had talked to you about what is tax planning, what is tax avoidance, what is tax evasion. We had talked about what is a person. I had also given you an idea about the HUF also. So with that background, let me share my slides with you. Which slide should I show you? Are you able to see this Yes, sir. on your screen? Okay. Okay. First of all, I am introducing this income tax rates. Income tax is based on slab rates. This is for financial year 2021. So needless to say, you people all know, yeah, that financial year is from 1st April to 31st March. So whether it is individual or business firm or a company, we are assessed on the basis of a financial year as far as India is concerned. So 1st April to 31st March. So now we are into financial year 2021, right? And so any income earned in this financial year will be assessed in the assessment year 21-22. So assessment year is always 1 year ahead of the financial year. Financial year is also many times known as the income year, or you can also call it previous year. So for example, now we are in 2021. So now the income of financial year 1920 is getting assessed. We all have to file our income tax returns for financial year 1920. So now 2021 becomes the assessment year for 1920. So right now I am talking about 2021. What are the tax slabs if you are claiming deductions and exemptions? So now there are two kinds of tax regime. So this year the budget was presented on 1st of February. So whenever a budget is presented in the parliament, it is for the upcoming financial year. So on 1st February 2020, when the budget was presented, so this means that this income tax slab rates will be applicable now to this current financial year, which is 2021. So this is as it is, income slab rate. Last time also we were talking, if you have an income up to 2,50,000, then individuals aged below 60 years, the tax rate is nil. There is no tax. There are three kinds of citizens. One are general citizens, that is those who are aged below 60 years. Then another category is senior citizens who are aged 60 years, but
60 years and above, but they are below 80 years, as you are seeing in my slide. Please watch my cursor also. And then super senior citizens aged 80 years and above. So any income up to 2.5 lakh is nil, nil, nil. Then income, you see this, my cursor, 2,50,001 to 3 lakh. 5% here. General citizens, senior citizens, nil. Super senior citizens, nil. 3 lakh 1. Any income between 3 lakh 1 to 5 lakh. General citizens, 5%. Senior citizens, also 5%. Super senior citizens, nil. Any income from 5 lakh 1 to 10 lakh. For general citizens, 20%. Senior citizens also 20%. And super senior citizens also, the rate is 20%. Any income above 10 lakh, the rate is 30% for all the three categories. This tax slab has been carried forward since the past 4 or 5 years now. So it's a same tax slab. Now here in the top line it is written, if you are claiming deductions and exemptions. What are deductions and exemptions? We will be talking about this also. For example, there is a very famous exemption, very famous deduction, called 80C. 80C has a limit of 1.5 lakh. If you are investing up to 1.5 lakh in one financial year in the investments specified in section 80C, then you can straight away deduct 1.5 lakh from your income slab. I will do some illustration also, don't worry. This year, they have introduced another slab. The government has said that if you are not claiming any deduction and exemption, उसमें deduction exemptions कौन से हैं? जैसे suppose you can invest in PPF, Public Provident Fund, your 8% or 12% from your basic salary is being deducted by your employer as Employee Provident Fund, EPF, or some pension scheme, for some amount is being deducted, or you are investing in any life insurance product, or you are investing in any health insurance product. So whatever premium you are paid, you can take the deduction, or if you have taken any housing loan, whatever installment you are paying, so the principal part you can deduct. So all those exemptions and deductions are given in this tax slab. However, if you are not claiming deduction and exemption, then this is another tax slab. So either you can avail this tax slab which is given above, or you can avail this tax slab. So this tax slab says up to 2.5 lakh, there is no income tax. From 2.5 lakh to 5 lakh, the tax rate is 5%. 5 lakh to 7.5 lakh, tax rate is 10%. 7.5 lakh to 10 lakh, tax rate is 15%. Above 10 lakh to 12.5 lakh is 20%. Then 12.5 lakh to 15 lakh is 25%. And 15 lakh and above, the rate is 30%. So these are the two slab rates. Anybody? I know there will be a lot of questions, but right now, any observation, any question? No, sir. You must have seen the newspapers this year in February when the budget was presented. So these are the new tax slabs. But here you will not claim any deduction and exemptions. Let me give you an idea what are these exemptions. And so I'll now coming to another slide. Okay, once again, if you can see this, this is what I was showing to you. This is through another slide. Up to 2.5 lakh for general public, nil. But for senior citizens, up to 3 lakh, it is nil. And for very senior citizens or super senior citizens above 80 years of age,
the minimum exemption limit is 5 lakh. So up to 5 lakh, they don't have to pay any tax rate. So you have to remember them. So we all fall in general public. So up to 2.5 lakh nil, 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20%, and 10 lakh. So this is another way of saying that. Above 10 lakh, the rate is 30%. For senior citizens, up to 3 lakh nil, 3 to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh for them, it is the same now, 20%, and above 10 lakh. For very senior citizens, super senior citizens, for them, income up to 5 lakh is exempted, that is nil. 5 to 10 lakh is 20%, above 10 lakh is 30%. Now there is another thing, on every income, there will be a cess. This cess will be at the rate of 4%. A 4% cess will be charged. Then, plus there is a surcharge also, income band. Less than, if you have income of less than 50 lakh in a year, then there is no surcharge. But if you have an income above 50 lakh up to 1 crore, between 50 lakh to 1 crore, then additional surcharge of 10% will be imposed. If you have income between 1 crore to 2 crore, then another surcharge 10% to 15%. If you have an income, annual income between 2 crore to 5 crore, then a surcharge of 25%. If the income is more than 5 crore, then the surcharge will be 37%. So health and education cess of 4% will be there. Then there is a tax rebate of 12,500 for income up to 5 lakh under section 87A. And there is no separate slab for male and female. Now let me give you an illustration. I have my desktop. That day I had saved tax calculation here. That day we were calculating, I had given you this illustration. You can see that Mr. ABC, if he has an income of 12 lakh annual income, so how you will calculate, and if now you have to know his age also, because suppose his age is 40 years. Okay, so how you will do it? 12 lakh annual income. First 2.5 lakh is 0% tax rate. So zero tax. I hope you are able to see this. Yes, sir. Yes, sir. Then next 2.5 lakh, this is what is the slab rate which I am showing to you. No, this is the same slab rate. So up to 2.5 lakh nil, 2.5 lakh to 5 lakh, that is next 2.5 lakh. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यानी this is the band 2.5 lakh to 5 lakh. So therefore I am saying, so therefore I am saying next 2.5 lakh at the rate of 5%. So 2.5 lakh ka 5% is 12,500. Next 5 lakh is 20%, 1 lakh. See, I was teaching this slab rates in UG, so they were not understanding it. So because first time they were exposed to this thing. So how did I explain to them? I told them that I'm using the same example. उनके समझ में नहीं आ रहा था ये slab rates. So what I did on the blackboard, on the whiteboard, I drew so many. I told them a story that there was a king, and he told his kingdom, his praja, that he gets whatever you earn. You know, there will be a lot of pots, matkis, and the first matki can take only 2.5 lakh into it. So whatever you put, if your income is 2.5 lakh and this matki or this pot becomes full, you will be not charged any lagan. That is, no tax will be charged. First matki. Then there is a second matki. It is also of the same size. It can hold only 2.5 lakh. It cannot hold more than that. But if you earn anything beyond first matki, if your first matki is full, okay, we will not charge you anything, because we feel that this is the basic money you need for your basic livelihood, for your basic, food, clothing, shelter. So I will not charge you. So the king is also a little bit, he's a kind king. But he say that I also have to run my kingdom. If in second matki, if you put
some money. It can hold any money. Even if you put 1 rupee in the second matki, if your earning is extra by 1 rupee or 100 rupees, I will charge you 5% on that. And the second matki can hold maximum 2.5 lakh. So you will have to pay me 5%. Then there is a third matki. This third matki is double of this size. So it can hold 5 lakh rupees. So if your income exceeds 2.5 plus 2.5, that is your two matkis, your two pots are full. Now in the third pot, whatever money, even if it is 100 rupees or 1000 rupees, you will have to pay me now 20%. Now this is more than, 5 lakh. You don't need more than 5 lakh. If you are earning more than 5 lakh, then you have to pay me more. Because this is, now you will be spending in luxurious items. Now basic fooding can be met in 5 lakh. This is what the king feels. So now in the third matki, he can hold maximum 5 lakh. So you have to, whatever you want, whether 100 rupees, 1000 rupees, you have to pay me 20%. So I literally drew matkis, on the board. But here, I cannot find. So therefore, I am explaining you. Now there is a fourth matki. It can hold a lot of money. It has infinite size. He says, whatever you put it, you will have to pay me now. This is much more. This is over 10 lakh rupees. So 2.5, 2.55 plus 5, 10. Over 10 lakh if you earn, then you fall in a rich people category. Now you have to pay me 30%, whatever money you put. And here also, there is a catch. I'll go back to this slide. Here also there is a catch. Thus, first matki 2.5 lakh size. Second pot is also of 2.5 lakh size. Third pot is of 5 lakh size. Fourth pot is of 50 lakh size, rather. It can hold 50 lakh. So you will pay me 30% on this. Above 10 lakh, up to 50 lakh. It can hold 40 lakh rupees. You will pay me 30% tax, but I will not charge you any surcharge on it. Then there is a fifth pot, which can hold another 50 lakh. So that means your 50 lakh are over. Now you fall in super rich category. So now you have to pay me an additional surcharge of 10%. Even if it is full, that means your income is 1 crore and above. So now there is a fourth, fifth, sixth pot, which can hold up to 1 crore. Oh, now you are super rich. Now you have to pay me additional surcharge. 30% you will pay, but on that additional surcharge of 50%, 15% also you will have to pay. If your earning is more than 2 crore, oh, now king is saying now you have to pay. Now there is another pot which can hold up to 3 crore, 2 crore to 5 crores. Now you have to pay me not only 30%, but additional surcharge has been increased to 25%. If your income is more than, now there is a seventh pot which can hold any, now it has got infinite limit, more than 5 crores. So whatever you earn, you have to pay me 30% plus additional surcharge of 37% plus education cess, which everybody has to pay, that is 4%. This is how, this has been worked out. You found this example useful? Was it interesting? So then the students, they all understood when I draw all these pots on the board. Make sense? Yes, my dear students, does it make sense? Yes, sir. Yes, This sir. example. तो इसमें क्या कर रहा हूँ, इसकी इनकम फर्स्ट पॉट में हमने डाली, कोई टैक्स नहीं हम चार्ज करेंगे. सेकंड पॉट 2.5 लाख की फुल हो गई भाई, 5% दे दे, विच बिकम्स 12,500. थर्ड पॉट भी फुल हो गया इसका, वो 5 लाख तक का ही उसके अंदर है. ये थर्ड स्लैब हो गया, 20% इसने दिया 1 लाख रुपीज, 5 लाख का 20%. देन नेक्स्ट पॉट ये होल्ड कर सकता है अप टू 40 लाख होल्ड कर सकता है ये, बट इसके 2 लाख ही आए हैं. अगर 100 रुपया भी होता तो इसका 30% लगता, तो खैर 2 लाख बचा है ना 12 लाख में, तो इसमें हमने 60,000. सो टोटल इसका टैक्स बन गया 1,72,500. इसके ऊपर फिर अब एडिशनल, ये सबके लिए लगेगा 4% सेस ऑन 1,72,500 इज 6,900. सो टोटल 1,72,500 प्लस 6,900 टोटल टैक्स पेएबल. सो टोटल tax payable is equal to 1,79,400 on an income of 12 lakh, net income of 12 lakh. This is how slab rate works.
Now, this is, I would say, first alternative tax slab for financial year, let's say 2021. Right now, there is another tax slab rate. This is a second alternative tax slab. चाहे आप ये वाला फॉर्मूला से लगा सकते हैं, गवर्नमेंट ने कहा, चाहे आप दूसरे फॉर्मूले से लगा सकते हैं. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? ये जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये क्योंकि बिल्कुल नया आया है तो इसलिए आ गया. 2 टाइप्स ऑफ टैक्स स्लैब रेट्स. दूसरा क्या है? दूसरा टैक्स स्लैब ये है, इसमें 2.5 लाख का इन्होंने स्लैब रेट दे दिया. गवर्नमेंट ने कहा कि पहला 2.5 लाख नील, दूसरा 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, तीसरा है 5 लाख से 7.5 लाख तक, यानी कि अगला 2.5 लाख 10%, अगला 2.5 लाख 15%, अगला 2.5 लाख 10 लाख से 12, ऐसे याद कर लो 20%. यहाँ 5% से इंक्रीज हो जाएगा आपका टैक्स. फिर अगला 2.5 लाख 25%, फिर 15 लाख से ऊपर सीधे 30% है. वहां क्या है, 10 लाख से ऊपर 30% है. तो अब मुझे देखना है कि मुझे किसमें फायदा है. ये आपको अभी क्या होगा, अब इस नेक्स्ट ईयर जब हम अपना टैक्स असेसमेंट करेंगे तो हर आदमी टैक्स सीए का काम बहुत बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एवरी एसएससी विल से कि यार पहले इससे कैलकुलेट करके देख ले, फिर उससे कैलकुलेट कर, जिसमें कम बैठता हो वो वाला मैं फॉर्मूला अडॉप्ट करूंगा. गवर्नमेंट ने आपको दे हैव गिवन यू चॉइस. सो 12 लाख इनकम, अगेन आई एम सेइंग 12 लाख इनकम. सो फर्स्ट, सॉरी थोड़ा टाइप करने में टाइम लगता है. फर्स्ट 2.5 लाख at the rate of 0% is equal to 0. सिंपल है ये वाला. इसमें सेकेंड 2.5 लाख at the rate of 5% is equal to 12,500. थर्ड ऐसे कर लेते हैं ना हम, इजी हो जाएगा. 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5% से बढ़ जाएगा ये, 10% इज इक्वल टू 2.5 लाख का 10% हो गया, ये हो गया 25,000. पैसा वही है, बट राजा बोल रहा है कि थर्ड मटकी में आ गया सेम पैसा तो आपका टैक्स बढ़ गया. तो अब ये फोर्थ मटकी आ गई राजा की. तो ये कहता है फोर्थ 2.5 लाख. इस यहाँ राजा ने क्या किया है, पब्लिक समझती नहीं थी यार छोटी मटकी बड़ी मटकी, उसने अब क्या किया, राजा ने सारी मटकी बराबर कर दी. इस केस में सब 2.5 लाख रुपए के साइज की मटकियां हैं. पहली मटकी में जो पैसा आया आपका 2.5 लाख, उस पर राजा ने कोई टैक्स नहीं लगाया. दूसरी मटकी में भी 2.5 लाख आया, उसमें 5% टैक्स लगाया. तो जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा कमा रहे हो. ये हो गया. तो राजा ने बड़ा सिंपल सिस्टम कर दिया. उसने कहा भैया 5% बढ़ा लो. तो 2.5 लाख का 15% कितना हो गया, ये 10% हो गया 25,000 और 37,500. ठीक है, अभी कितने हुए हैं, 2.5 5 10 लाख हो गए. अब लास्ट बचा है फिफ्थ 2.5 lakh at the rate of 20% is equal to 50,000 हो गया इसका, है ना, 50,000. ये सारा टैक्स है. अब इन सबको आप कर दीजिए टोटल. तो टोटल टैक्स हो गया, इन सबको अब टोटल कर दिया.
ये हो गया 37,500 और 12,500, 50, 1,25,000 हो गया ना ये। प्लीज टेल मी इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट। 50, 50, 1,25,000। यस सर 125 है। हाँ 125। सो इसमें वही होगा एट 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC इज इक्वल टू, ये यार मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, इसका 4% लगाइए। So this is 1,25,000 into 4% is equal to, ये अरे सिंपल हो गया, तो this is equal to 5,000 हो गया। 5,000 only. 5,000। So total tax payable is equal to 1,30,000। अब कंपेयर कर लो, इसमें 1,30,000 दे रहा है इस फॉर्मूले से, इसमें दे रहा है 1,79,000। तो इसको इस वाले नए टैक्स स्लैब में फायदा है क्योंकि ये 20% ही आया ना इसका, ये यहाँ पर लेकिन ठीक है ना, इस यहाँ स्ट्रेट अवे यहाँ इसको बेनिफिट है। यहाँ पर देखिए 1,25,000 दे रहा है, यहाँ 1,00,000 समझ लो 80,000 दे रहा है, तो कितना 55,000 रुपए का टैक्स का फर्क पड़ रहा है इसको। तो नया इसलिए टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। बट इसमें क्या है, अभी हम ये समझेंगे, मैंने आपको ये दोनों इलस्ट्रेशन, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके लिए समझाए आपको। तो आप चाहे ये अवेल कर सकते हो, चाहे वो वाला अवेल कर सकते हो फॉर्मूला। बट इसमें क्या किया है, इसमें राजा ने ये बोला है, किंग ने, कि इसमें ये जो मटकियां हैं ये छोटे बड़े साइज की हैं, यहाँ सीधे आपका यहाँ 30% आ जाता है। 10 लाख से ऊपर यहाँ आपकी इनकम होती है, और यहाँ पर जो 30% आ रहा है यहाँ 15 लाख की इनकम के ऊपर आएगा आपका। तो 12 लाख की इनकम पे 30% लगा ही नहीं है। 20 के बाद फिर 25 लगेगा, फिर 30 आएगा। तो यहाँ 5% के स्लैब है। यहाँ स्टेट अवे क्या था, 5% के बाद सीधे 20% आ गया था, और 20 के बाद सीधे 30% आ गया था। लेकिन यहाँ कुछ बेनिफिट्स दिए हैं किंग ने, ये समझ लो। वो हम एग्जेम्पशन और डिडक्शन समझते हैं पहले, क्योंकि जब तक हम वो नहीं समझेंगे ना, तब तक हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग वगैरह नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल समझना है ना, और कॉर्पोरेट में भी आपको इंडिविजुअल्स का टैक्स तो बनाना पड़ेगा ना, आपको उनकी सैलरी बनानी पड़ेगी। तो अब मैं आपके सामने ये वाला खोल रहा हूँ स्लाइड वंस अगेन। ये टैक्स स्लैब मैंने आपको पुराने वाले दिखा दिए जो इस साल भी लागू हैं। ये है, दीज आर टैक्स सेविंग सेक्शंस। मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्शंस फ्रॉम इनकम, जो हम अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1.5 लाख, इस तरह के बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन सबसे फेमस सेक्शन 80C है, जो हर एक के ऊपर लागू कर सकता है, हर एक इंसान उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है। 80C वगैरह ये सारे सेक्शन नए वाले टैक्स स्लैब में एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप कोई डिडक्शन नहीं ले सकते। इसमें क्या है, 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD 1B। 80C क्या है, मैक्सिमम 1.5 लाख डिडक्शन, इन तीनों को मिलाकर के आप ले सकते हैं। 3 सेक्शंस हैं गवर्नमेंट के। 80CCC जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में, इट इज फॉर पेंशन प्रोडक्ट्स। 80CCD, CCD आप याद कर लिए, कैफे कॉफी डे के नाम से है ये CCD, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए सेक्शन लागू होता है। 80C क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, PPF, ELSSS, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है, इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम, FDs वगैरह होती हैं। इन सब तीनों को मिला के 1.5 लाख रुपए तक आप लेस कर सकते हो अपनी इनकम से। एक 80CCD 1B यानी कैफे कॉफी डे और 1B, इसमें 50,000 अगर आप, एक नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की, इसमें अगर आप 50,000 रुपए तक अगर आप पैसा लगाते हो तो वो आपका एडिशनल 50,000 रुपए आपकी इनकम से डिडक्ट हो सकता है। 1.5 लाख प्लस 50,000, इसका भी हम इलस्ट्रेशन दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं सेक्शन और कौन कौन से हैं। पहले हम ये वाले सेक्शंस के ऊपर आता हूं। पहले हम एक बार 80C ये वाले सेक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं।
ये आपके सामने मैंने इकट्ठा सारा खोल दिया है। 80C, 80CCC, 80CCD में क्या लिखा है? The maximum deduction combining all these investments or expenditure is rupees 1.5 lakh. Following options are available. For example, if you come under Provident Fund, that is EPF. EPF is Employee Provident Fund. Tomorrow, when you start working in a company and the company deducts your PF, so whatever portion from your salary is being deducted and being deposited with EPFO, that is Employee Provident Fund Office. Provident Fund क्या होता है? ये एम्प्लॉई के फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बना रखे हैं कि एनी कंपनी विच इज एम्प्लॉइंग 10 or more than 10 people, then EPF Act will apply to that organization. So compulsorily that employer is supposed to deduct up to 12% of your basic salary and deposit it with the EPFO, which is a government body, Employee Provident Fund Office. Whatever he will deduct, suppose आप किसी की सैलरी 10,000 रुपए बेसिक सैलरी है महीने की, बेसिक सैलरी 10,000 रुपए का उसने, लेट से वो 10% काट रहा है, तो 1,000 रुपया उसने महीने में आप उसका काटा एम्प्लॉय का, उतना ही एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा 1,000 रुपया, तो उसके एम्प्लॉय के पार्ट से 2,000 रुपया जमा हो गए उसके EPF अकाउंट में हर महीने। तो जो 1,000 रुपया जो एम्प्लॉय का कटा है वो यहाँ पर शामिल कर सकता है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। गवर्नमेंट कहती है उतना वो डिडक्ट हो जाएगा। यार साल भर में लगा लो 1,000 रुपया महीना कटा तो 12,000 रुपया साल का आपका वो हो गया। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? No, sir. Please keep on speaking, keep the session lively please, and keep on asking any question and keep on adding also, because some of you must have studied these things. मुझे बता देना क्या अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, सबको मालूम है, तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, बताइए। Should I continue with this? Yes sir, continue. सिमिलरली इसमें क्योंकि एक ही ऑप्शन में जरूरी नहीं है ना आपके 1.5 लाख पूरे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दिए, किसी एक में सारे पूरे हो जाए आपके 1.5 लाख साल में, या सबको मिला के हो जाए, कोई सा भी आप ले सकते हो ऑप्शन। दूसरा है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ क्या है बताइए, चलिए, व्हाट इज पीपीएफ? सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसमें है कि जो कंपनी है वो आपके जो आप सैलरी है उस पे कुछ अमाउंट फिक्स्ड है, वो कंट्रीब्यूशन कंपनी खुद देती है और उस पे कुछ कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट का गवर्नमेंट भी देती है। नहीं, वो तो ईपीएफ था जो मैंने अभी आपको यही चीज बताई, वो तो ईपीएफ है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ओके, वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में होता है, जिसके कंपनी आपके सैलरी में से डिडक्ट करती है, बेसिक सैलरी का मैक्सिमम 12% डिडक्ट कर सकती है कंपनी। यस, ये भी रूल है। ये सारे रूल भी आपको मालूम करने होंगे। देखो ये कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जब आप पढ़ रहे हो, सारी चीजें आपको मालूम करनी पड़ेगी। फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप 12% से ज्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते, 12% उसकी बेसिक सैलरी का आप डिडक्ट कर सकते हो। पब्लिक नाम है, ये है प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं इसको, ईपीएफ लिखा हुआ है इसलिए। एक होता है वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड होता है कि एम्प्लॉयर आ नहीं रहा है ईपीएफ एक्ट में, एम्प्लॉय भले ही कम है, 10 से कम है, लेकिन वो फिर भी वॉलंटरी का मतलब है 12% से ज्यादा डिडक्ट कर रहा है, अपने आप भी ज्यादा दे रहा है, तो टैक्स का बेनिफिट आपको 12% तक ही मिलेगा उसको, एम्प्लॉय को, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आप बोलते हो अपने एम्प्लॉयर को सर मेरा 20% काट लो, मैं तो अभी नहीं ना, मैंने कैरियर शुरू किया है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, आपके डैडी ने कह दिया कि बेटे तेरे को अपनी सैलरी को टच मत करना, तू हमारे साथ रह रहा है, तू अपना पैसा बस जमा करता रहे, अब तेरी को सैलरी टच करने की जरूरत नहीं, तू घर पे रह रहा है। तो आप क्या करोगे, आपने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि यार फ्यूचर के लिए मेरा 20% भी काट सकता है, ताकि वो 20% ही एम्प्लॉयर भी जमा कर रहा है सपोज, तो वो वॉलंटरी हो गया आपकी, लेकिन आपको टैक्स बेनिफिट जो है, जो इतना 12% कटा है ना, वहां तक मिलेगा आपको। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये है, अगर आप एम्प्लॉय भी नहीं है, टुमारो यू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज, आप एंटरप्रेन्योर हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको तो कोई फ्यूचर में आपका कोई फंड बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कुछ काट ही नहीं रहा, आपका कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक प्रोविजन है पीपीएफ, आम पब्लिक। आप आज भी खोल सकते हो, आप स्टूडेंट हो, आप आज भी खोल सकते हो ये अकाउंट जा करके,
इसमें जो भी आप साल भर में जमा करते हो उस अकाउंट में अप टू 1.5 लाख, वो भी आप डिडक्शन ले सकते हो, अपनी इनकम में से वो कट जाएगा। तो आप इसको इस तरह समझो, द किंग हैज सेड कि यार कि आई हैव मेड सम स्कीम्स, मेरी कुछ स्कीम्स हैं, उसमें अगर आप पैसा डालोगे, वो पैसा क्योंकि राजा की किंगडम में ही काम आएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के काम आएगा, तो राजा बोल रहा है कि इसमें अगर आप कुछ पैसा डालते हो उस मटकी में से निकाल के, मेरी ही स्कीम्स हैं ये सारी, तो मैं आपको, तो मटकी से पैसा आपका कम हो गया ना, मैं इसके लिए इस पे टैक्स नहीं लगाऊंगा आपको, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए है पैसा। तो राजा भला राजा है, ही इज अ काइंड, ही इज वरीड अबाउट हिज पब्लिक। और हाँ, कल को आप एम्प्लॉय भी हैं, आपका यहाँ भी कट रहा है, और आपने अपना भी एक इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा लिया है, जो कि आपकी ये स्वेच्छा का अकाउंट है, इट्स अ सेल्फ, इट्स योर सेल्फ अकाउंट, that is called PPF account, and where you can open it any branch of State Bank of India, any other public sector bank. You can also open it in a ICICI bank, HDFC bank. It's basically a account of bank. You can open it in a post office. So all these banks and post offices are the service providers for this central government account, and you earn an interest on it. You not only earn interest in APF, you also earn interest in PPF. ठीक है जी। तो किस आप में से अभी कितने स्टूडेंट हैं अभी हमारे लॉगिन? लेट मी सी। ओ वेरी गुड यार, तुम तो 50-50 बोल रहे थे ऑलरेडी। 70 स्टूडेंट, 69 स्टूडेंट्स आर देयर, so that means other people have also opted it. How many 69 70 student out of these student, how many students have a PPF account? I want to know. No one. Okay. See, this happens. This is what is lacking. हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज लैक करती है, मैं ये पर्सनली फील करता हूँ। हम लोग ना आपको बड़ी हाई फाई बातें तो बता देते हैं कि ये करो, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये वो जो बेसिक से हम लोगों ने आपको अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं किया। मैं समझता हूँ पीपीएफ अकाउंट इज अ मस्ट। और पीपीएफ अकाउंट व्हेन अ पर्सन बिकम्स 18 years of age, as soon as he or she attains 18 years of age, आप अपने आप खुलवा सकते हो। और ये अकाउंट तो होना चाहिए। हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं, ये अकाउंट होना चाहिए और अब तक आपको खुलवा देना चाहिए था। और एनीवे, इट इज नेवर, इट्स बेटर लेट देन नेवर। यू स्टार्ट दिस पीपीएफ अकाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल। अभी तो आप स्टूडेंट हैं, आप जाके खुलवाइए किसी भी अपने, आजकल लॉकडाउन तो खुल ही चुके हैं, वैसे आप किसी भी स्टेट बैंक में जाइए, अभी पोस्ट ऑफिस में जाइए, व्हेनेवर इट इज कन्वीनियंट टू यू, और अपना अकाउंट खुलवाइए। 500 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाता है। जस्ट लेट मी प्लग इन। So you can open this account with 500 rupees, and in 1 year minimum money which you have to put in is just 500 rupees. Minimum is you can put in is 500 rupees, and maximum which you can put is 1.5 lakh only. And nowadays अभी कितना इसमें इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है? अभी पोस्ट ऑफिस की स्कीम में अभी 7.1% है। अभी मैंने 1 मिनट, क्योंकि हर क्वार्टर में करंट पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7.1 है। हाँ देखिए 7.1% है अभी। अभी देखिए आप बैंक्स की एफडी में 5.5% से ज्यादा कोई बैंक नहीं दे रहा है, मैक्सिमम 5.75 दे रहा होगा कोई। 7.10% मिल रहा है आपको, एंड इट इज टोटली टैक्स फ्री। जो आपको पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री मिलेगा हमेशा। तो ये तो आपको तुरंत खुलवा देना चाहिए ये अकाउंट। तो एनीवे, प्लस जो भी आप पैसा हर साल जमा करते हो उसका आपको डिडक्शन भी मिलता है, वो आपकी इनकम से कम हो रहा है। तो आपकी इनकम कम हो रही है तो आपका टैक्स भी कम हो रहा है, क्योंकि जब आप राजा के पास मटकी में पैसा डालोगे आप कम पैसा डालोगे ना, क्योंकि आपने वो अपने, और वो भी राजा नहीं ले रहा आपसे पैसा, वो राजा कह रहा है यार मेरी स्कीम में डाल दो, गवर्नमेंट कह रही है मेरी स्कीम में डाल दो, वो फ्यूचर में आपको मिलेगा।
उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको. इट इज अ काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू. फाइन. Similarly, there is a third scheme called Sukanya Samriddhi scheme. This scheme was launched by Modi government in 2014 or 15. So this is for girl child up to 12 years of age. So one can open an account in the name of that girl child, and whatever amount you are putting in that account, you can claim a deduction. Similarly, in post office, there is a scheme called NSC, National Savings Certificate. So if you invest in this scheme, you get another deduction. Then there is a senior citizen savings scheme. This is for senior citizens. If this is fixed deposit, if you invest in a 5-year tax saving fixed deposit, then also you can claim this deduction, but it should be 5 years. If it is less than 5 years, then it doesn't come under section 80C. Then whatever you have, if you have bought a life insurance plan for you, not only it will be useful to the person in case of his untimely demise, but whatever premium this person pays, either for his own life or for the life of his family members, so this premium also he can claim as deduction. So the government says कि यार life insurance भी आपके लिए जरूरी है, so whatever premium you are paying, I will deduct it from your annual income. Similarly, if you have bought any pension plans, either from mutual funds or from insurance companies, or it's a government pension scheme called new pension scheme, ये भी एक NPS scheme भी, जैसे provident fund बताया था ना, एक तो होता है employer के through, एक होता है provident fund through, ये public provident fund ये आपका अपना है, you need not be an employee. Similarly, national pension scheme is one national pension scheme. अभी इसका नाम नेशनल पेंशन स्कीम कर दिया, पहले न्यू पेंशन स्कीम था, इसलिए नेशनल पेंशन स्कीम एक तो होती है एम्प्लॉयर के थ्रू, उसमें एम्प्लॉयर आपका एक अमाउंट डिडक्ट करता है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा कितना अमाउंट डिडक्ट कर सकता है एम्प्लॉयर. दूसरी नेशनल पेंशन स्कीम आपकी खुद से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ये एनपीएस स्टार्ट हुआ था इंडिया में, ये नई न्यू इसलिए कहलाता है, ये लॉन्च हुआ था 2009 या 2010 में लॉन्च हुआ था, या फाइनेंशियल ईयर 2009-10 में लॉन्च हुआ था. So on my own, I had opened my account in 2011 in NPS, and I have been putting money into this scheme myself. Similarly, there is a tax saving scheme of mutual fund, which is known as ELSS. If you put any money over here, so any pension scheme or tax saving mutual funds, then if you have taken a home loan, in home loans you are paying some installments, EMI. In any EMI, there are two components of EMI. एक होता है प्रिंसिपल पार्ट, दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट पार्ट. तो दो कंपोनेंट होते हैं. जब भी आप अपना लोन का एक शेड्यूल आपको आपका बैंक देगा, हर महीने की EMI में हर महीने आपका प्रिंसिपल अमाउंट डिफरेंट होगा. धीरे धीरे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाएगा, सॉरी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम होता जाएगा. तो जब आप पूरे साल का उस शेड्यूल से निकाल लोगे भाई मैंने कितना प्रिंसिपल अमाउंट रीपे किया है, वो भी आप इसमें अवेल कर सकते हैं. सिमिलरली, आपने कोई नया मकान खरीदा है अपने लिए, उसकी जो भी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आपको लगी है 6 या 7% जो लगती है, वो भी आप क्लेम कर सकते हो उसमें. अगर किसी के 2 बच्चे हैं, वो जैसे आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो भी आपकी फीस में जो ट्यूशन फी पार्ट होता है अप टू 2 चिल्ड्रन, वो भी वो इसमें 80C में सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस सेक्शंस ऑफ 80C, 80CCC एंड 80CCD. 80CCC और 80CCD में एक्चुअली सारे पेंशन प्लान आते हैं. पहले ये अलग सेक्शन हुआ करता था, गवर्नमेंट ने इन सबको मर्ज कर दिया, इसीलिए ये तीनों सेक्शन एक साथ लिखे हुए हैं. इन सबकी लिमिट टोटल 1.5 लाख है. समझ गए बात? अब देखिए, अब हम अपने इलस्ट्रेशन पे आते हैं 1 मिनट के लिए. हाँ जी, इसमें कोई एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? सो मच ऑफ साइलेंस, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एनी क्वेश्चंस? नो सर. अच्छा, अब हम आते हैं ये दोनों स्कीम्स में. 12 लाख हमने 2 तरह से कैलकुलेट किया था. अब इस स्कीम में ये
ये वाला जो मिस्टर एबीसी हैं और इनका एज 40 इयर्स, और इसमें हमने सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हम ये कर लेते हैं कि इसमें थे मिस्टर, ये थे एक्स वाई जेड, इनकी भी एज है लेट्स से 40 इयर्स। ठीक है जनाब। अब इन्होंने, इनके पास अब एक ऑप्शन है, अगर ये कुछ भी सेव नहीं करते हैं साल का, 12 लाख इनकी इनकम है, तो ये टैक्स कितना देंगे, 1,79,400, हमने अभी कैलकुलेट किया था। अब क्या है, इनके पास एक ऑप्शन है 80C 80CCC का। इन्होंने समझ लो सबको मिला करके, लेट अस से ही इन्वेस्ट सबको मिला करके इन्वेस्ट 1.5 लाख जिसकी लिमिट है इन वेरियस स्कीम्स ऑफ सेक्शन 80C। ये ठीक है, नजर आ रही ना स्क्रीन? इसको और बड़ा करूं क्या? Should I enlarge my screen or is it okay? So what will happen now? So income. So we will write total income equal to 12 lakh less deductions। ये कितने लोगों ने किया हुआ होगा वैसे तो ये सब चीजें अंडर सेक्शन? ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में बिल्कुल, इतना सब लोग, एक बोलता भी है तो एक रवि बोलता है कभी बीच बीच में, और तो कोई बोलता ही नहीं है। स्टूडेंट्स सो गए हो क्या ऑन करके? नो सर। तो और कोई बोलता क्यों नहीं है भाई? बोलते रहो बीच बीच में, क्वेश्चन पूछते रहो। टोटल डिडक्शंस अंडर less deduction under section 80C is 1.5 lakh. So now taxable income is equal to, so 12 lakh minus 1.5 lakh कितना हो गया? 10.5 lakh। ठीक है ना? तो इसकी इनकम कितनी हो गई? 10.5 लाख हो गई। कहाँ हम 12 लाख? तो कैसे आप निकालेंगे? फर्स्ट 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 0% इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5% इज इक्वल टू 12.5। यहाँ तक वो ही आएगा, 5 लाख पूरे हो गए। अगला 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, ये भी यहीं तक आएगा। इसके बाद यहाँ कितने हो गए उसके पूरे? 10 लाख यहाँ पूरे हो गए। कितने बचे? 50,000। तो यहाँ सिर्फ नेक्स्ट 50,000 at the rate of 30%. So I'm using this as a whiteboard. No? 30% is equal to 50,000 का 30% कितना हो गया? 15,000। 15,000। अब यहां खत्म हो गई इसकी टोटल। तो टोटल इसका टैक्स कितना आ गया? टोटल इक्वल टू, ये कितना हो गया? 1,15,000 और 12 कितने हो गए? 15 और 10 25, 27,500। 1,27,500 प्लस एड 4% सेस ऑन, इसके ऊपर ही लगेगा ना, 1,27,500 इज इक्वल टू, ये हो गया 1,27,500 इंटू 4% इज इक्वल टू 5,100। सो टोटल टैक्स पेएबल इक्वल टू प्लस
1,27,500 is equal to 1,32,000 2,600। तो पहले कितना दे रहा था जब इसने सेव नहीं किया था पैसा? 1,79,400, देख रहे हैं ना आप। और अब दे रहा है 1,32,600। तो कितनी सेविंग कर दी? सॉरी 1,79,400 दे रहा था ना पहले ये। अब सेविंग अब दे रहा है 1,32,600, तो 46,000। सो टैक्स सेव्ड, so tax saved is equal to 46,800। तो 1.5 लाख रुपया इसने अपना खर्च नहीं किया, उसको सेव किया 1.5 लाख रुपया, तो कितना टैक्स बचा लिया? 46,800। इसका मतलब क्या समझना? मोटा मोटा आप ये समझ लो कि 1.5 लाख अगर मैंने सेव किया है, मेरी इनकम 12 लाख है, तो 46,000 यानी 50,000 तो मैंने मेरा वैसे ही बच गया। मैंने एक तरह से समझ लो, अदरवाइज मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता, तो एक तरह से मैंने 1 लाख रुपया ही सेव किया। तो ये फायदा होता है इस वाले स्लैब में। लेकिन नए स्लैब में अभी भी उसका ज्यादा है, टोटल टैक्स 132, और नए स्लैब में अगर कोई भी टैक्स सेविंग मत करो आप। इसमें कितना दे रहे थे हम? 1,30,000, मतलब उसके करीब करीब ही आ गया, 1,30,000 उसमें। इसमें कोई सेविंग करने की जरूरत नहीं है इस वाले इसमें आप सेविंग करके टैक्स बचा सकते हो। तो नए वाले टैक्स स्लैब में आपको सेविंग का ऑप्शन नहीं है, आपका सेव कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपकी मर्जी है। गवर्नमेंट कहती है ये फ्लैट रेट है टैक्स का। इसके अंदर क्या है कि आपको ये ऑप्शन दिया है कि भाई ये आपकी इसी बहाने सेविंग हो जाती है, लोगों की ना इसी बहाने सेविंग हो जाती है टैक्स बचाने के चक्कर में, और इन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं। इन लोगों को ये चीज नहीं पता थी, वो लोग पूछे ये चीज आप में कोई सेंस लग रहा है आपको? लॉजिक तो 1,32,000 कर लिया बंदे ने अपना टैक्स, 1.5 लाख रुपया सेव करके और इन्वेस्ट करके इसने अपना 46,800 रुपया बचा लिया। और अभी और भी बचा सकता है, अभी हमने पूरे सेक्शन अभी पढ़े नहीं है। एनी डाउट? नो सर। नो सर। अभी हम आगे आते हैं, अभी पिक्चर में बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी ये सिर्फ 1.5 लाख एक सेक्शन बताया हमने, और भी सेक्शंस में सेव कर सकते हैं हम अपना टैक्स। अब हम आते हैं बाकी सेक्शंस पे। ये अब एक और सेक्शन है 80D। 80D में क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है फॉर फैमिली एंड पेरेंट्स। आप देख रहे हैं यहां पर डिडक्शन एक और है, अप टू 1 लाख है। ये एक्चुअली 80D में चले जाते हैं हम, सीधे 80D में चले जाते हैं यहाँ पर। ये रहा 80D मेडिकल इंश्योरेंस। जो 80C वाला इंश्योरेंस था वो लाइफ इंश्योरेंस था। दैट लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर ओनली फॉर डेथ। डेथ के रिस्क को कवर करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वो 80C में आता है। एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस इज ऑफर्ड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, and life insurance is offered by life insurance companies, which you have studied in legal aspects also. I have हमने concepts insurance के भी पढ़े थे। इसमें क्या लिखा हुआ है? Premium paid for mediclaim and health insurance for self, spouse, children and parents qualify for deduction under section 80D। आपने अपने लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए। You can claim medical maximum deduction of 25,000 in case you are below 60 years of age and 50,000 above 60 years of age। जैसे हम लोग हैं जो below 60 years of age हैं, जनरल सिटीजन्स, हम 25,000 रुपए तक का प्रीमियम दे सकते हैं साल का। तो हमें जितना हम प्रीमियम देंगे वो हम एडिशनल डिडक्ट कर सकते हैं अपनी इनकम से। अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो ये 50,000 रुपया हो जाता है का डिडक्शन है वो। तो ये आप अपने, अगर किसी के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन बन गए हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, या बनने वाले होंगे
कि भाई आप मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे तो 50,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एंड एडिशनल डिडक्शन ऑफ 25,000 कैन बी क्लेम फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स, 50,000 इन केस ऑफ आइदर पेरेंट्स बीइंग सीनियर सिटीजन। इसमें क्या होता है, एक फ्लोटिंग प्लान होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें सभी लोग कवर हो सकते हैं। आप पेरेंट्स, हाँ आप अपने पेरेंट्स को उसी में कवर करा सकते हो, या कल को आप अपने पेरेंट्स के लिए अलग प्लान लेते हो। आप कल को बोलते हो यार मैं अपने पेरेंट्स के लिए मैं दे रहा हूं उसका प्रीमियम, तो 25,000 अपना, अगर आपके पेरेंट्स बिलो 60 ईयर्स हैं तो 25,000 उनका, तो 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक 60 ईयर से अबव हो गया है तो 50,000 उनका और 25,000 अपना, तो 75,000 रुपए तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ 25,000 कैन बी क्लेम फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है ना। 50,000 in case of either parents being senior citizens. So this deduction can be claimed irrespective of parents being dependent on you or not. तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट दे दिया। जरूरी नहीं है आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस में आप पे डिपेंडेंट है या नहीं है, तब भी आप ले सकते हो। बट दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इन लॉज। इन लॉज के लिए कवर नहीं के लिए नहीं ले सकते। HUFs can also claim this deduction for premium paid for ensuring the health of any member of the HUF। HUF भी ले सकती है। इसमें एक और प्रोविजन था, नीचे आप मेरा कर्सर देखिए। बजट 2013 introduced deduction of 5,000 is also allowed for preventive health checkup for self, spouse, dependent parents, children and parent. It is continued for this financial year too. This 5,000 is within 25,000 limit for health insurance। अब लेट अस से कल को आप अपनी जॉब शुरू करते हो, अब आप यंग एज में आपको इतना 25,000 तक के प्रीमियम आप अवेल नहीं कर पाओगे। आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए तक का कवर आपको 7-8 हजार रुपए में बड़े आराम से मिल जाएगा, बल्कि 5-6 हजार रुपए का ही प्रीमियम जाएगा आपको। तो जरूर जबरदस्ती थोड़ी आप 25,000 का प्रीमियम दोगे। उसमें फिर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 5,000 का आप अपने लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक साल में एक बार अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए या बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए करा सकते हो हर साल। तो 5,000 आप उसी 25,000 में 5,000 का हर साल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लो सबका। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें वापस अपने इलस्ट्रेशन में, जो हम अपनी एक तरह से केस स्टडी की तरह हमने इसको लिया है। अब इस बंदे ने क्या किया, मिस्टर एबीसी ने, हम अभी एक्चुअली 12 लाख का ही ले रहे हैं, तो इनकम तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक तरह से हमने केस स्टडी ली है। अब इन्होंने 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। अब हम ये मान के चल रहे हैं इन्होंने he also buys health insurance plan under section 80B and pays premium। अब लेट्स से इन्होंने अपने सीनियर सिटीजन्स जो पेरेंट्स है उनको भी कवर कराया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं इसने मैक्सिमम 25,000 ही लेके चल रहे हैं हम। 25,000 वैसे तो 50,000 तक कर सकता है अगर पेरेंट्स का अलग इंश्योरेंस ले, लेकिन हम 12 लाख में यार कितना बेचारा से इन्वेस्ट कराएंगे, हम 25,000 लेके चल रहे हैं। एंड पेज अ प्रीमियम ऑफ 25,000। तो अब क्या होगा, देखो मैं आपको जिस तरह समझा रहा हूँ ना, इस तरह से इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारा पूरा इलस्ट्रेशन बना के, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। लेस डिडक्शन अंडर 80C 1.5 लाख का ये डिडक्शन लिया इसने। यहाँ क्या हो जाएगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन, इसको हम बोलते हैं 80D, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आते हैं। इसमें इसने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000। तो टैक्सेबल इनकम अब इसकी कितनी हो गई, 12 लाख में से पहले 10.5 में से आप और 25,000 घटा दो, तो ये हो गई 10.25 लाख। अब 10, तो जो बाद का जो स्लैब बचेगा ना, ये बचेगा नेक्स्ट 25,000 का बचेगा, नेक्स्ट 25,000 एट द रेट ऑफ, तो और कम हो जाएगा उसका टैक्स। एनी डाउट? नो सर।
तो अब 10 लाख पर इसका टैक्स निकलेगा। तो ये लास्ट का स्लैब यहां तक तो सेम रहेगा। तो लास्ट जो 30% वाली मटकी में सिर्फ 25,000 रुपए बचे, क्योंकि 25,000 ये राजा ने लेस करवा दिए कि भाई तूने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है, वो तेरे लिए जरूरी है यार, तेरी फैमिली के लिए, तो इसके ऊपर यार मैं टैक्स नहीं चार्ज करूंगा। ये भी ये जरूरी है। और बल्कि जो गवर्नमेंट है वो आपको एनकरेज कर रही है कि यार ऐसे प्लान लो, ऐसे प्लान होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट के ऊपर भार पड़ेगा। तो ये सामाजिक सोशल सिक्योरिटी भी जरूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं भाई, अब आपकी ये जो अगली पॉट है ना, इसमें 25,000 रुपए ही आपके पड़े हैं टैक्स वाले। तो इसका 30% कितना हो गया? 25,000 का 30% 7,500 सर। अब ये देखो 7,500, 7,800। तो यहाँ टोटल और कम हो जाएगा। ये हो गया आपका 12.5 और 7.5 हो गया, ये 20, 1,20,000 हो गया। तो 7,500 बंदे ने सेव कर लिए। इसने 25,000 का हमने समझो प्रीमियम दिया। आप सीधे सीधे ये समझ लो यार, जो हमने 25,000 रुपए का प्रीमियम दिया ना, तो मैंने वो प्रीमियम देके 7,500 का टैक्स सेव कर लिया ना। हालांकि उसमें भी फर्क पड़ेगा, सेस में भी फर्क पड़ेगा, लेकिन अभी मोटा मोटा हिसाब ये है, मैंने 7,500 रुपया टैक्स सेव कर लिया। तो एक तरह से मेरे को वो इंश्योरेंस प्लान 17,500 रुपये में पड़ गया। आप ऐसे कैलकुलेट करो ना, सीधे कैलकुलेट लाइक अ बिजनेसमैन के 25,000 ना देके मेरे को 17,500 में पड़ गया, क्योंकि मैंने जो 25,000 अगर मैं ना लेता तो मेरे 7,500 रुपया मैं टैक्स ज्यादा देता। तो मेरे को प्लान का प्लान मिल गया, फ्यूचर में मेरी फैमिली भी कवर हो गई और मेरा टैक्स भी सेव हो गया। तो 1,20,000 हो गया। तो यहाँ इसको फायदा है। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ 1,32,000 ही है, 1,30,000 ही है उसका टैक्स। इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है फैसिलिटीज नए टैक्स लैब में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिए, ठीक है जी। लेकिन मेरे दोस्त, पिक्चर अभी भी थोड़ी सी बाकी है, अभी भी एंड नहीं हुआ है। 80D। अब हम आते हैं, एक और सेक्शन है, हम वापस जाते हैं अपनी स्लाइड पर। 80D हो गया। एक है सेक्शन जो मैं पॉपुलर सेक्शन है, पहले वो ले रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, चलो मैं डायरेक्ट उस स्लाइड पे आता हूं जो कि मैं अवेल कर रहा हूं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी अवेल करें। इन चीजों को आप अपनी लाइफ में अडेप्ट करें, देखिए तभी फायदा होता है, तभी आप सीख पाते हैं। 80CC-D1 भी कहाँ गया यार? एक मिनट। 80U, 80DDB, 80E, 80D, पेंशन प्लान्स, लाइफ इंश्योरेंस आ गया। चलो मैं एक और सेक्शन पे आ रहा हूँ, अभी वो मुझे मिल नहीं रहा वो स्लाइड। एक और स्लाइड दिखाऊंगा मैं आपको, अदरवाइज वो मैं वैसे ही बता दूंगा आपको। हाँ, 80E। See, I think most of you have also taken an education loan. If you have taken an education loan, this comes under another section called 80E. ये देखिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप अपने फादर को भी कह सकते हैं कि वो अपनी इनकम से इसको अवेल कर सकते हैं। द एंटायर इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन इन अ फाइनेंशियल ईयर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80। एजुकेशन लोन में एक प्रोविजन ये होता है अब कि आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए, यू कैन स्टार्ट योर इंस्टॉलमेंट इमीडिएटली, और whenever that boy or girl who has taken the education loan, when he or she gets a job, then only your installments will start. So the moment your installment starts, there will be a principal portion in your EMI, there will be an interest portion in your EMI. So you add up all the interest part in that financial year. So whatever is the interest part, that you can claim as deduction, and there is no limit to that amount. So you can straight away deduct it from your annual income. So that is why in the top line it is written, the entire interest
paid on education loan in a financial year is eligible for deduction under section 80E. There is no deduction on principal paid for the education loan. The loan should be for either for the education of your own, that is self, or for your spouse or children only. The loan should be taken for pursuing full-time courses only. It is not available for any part-time or correspondence course. The loan has to be taken necessarily from approved charitable trust or a financial institution or an approved bank. And the deduction is applicable for the year you start paying your interest and 7 more years immediately after the initial year. So for 8 years total. So first year plus 7 more years you can claim. So in all, you can claim education loan deduction for maximum 8 years. Now, I just want to know from you people, those who have taken education loan, that have you availed immediate installment or have you availed for this scheme ke only when you get a job and you start earning, then only your installment will start. Let me also know, because ये मेरे को भी थोड़ा सा statistics आएगी in my mind, that how people are availing this in education loan. I want to hear your answers. It is actually a question which is applicable to you, some of you. We can start with Ravi as usual. Sir, I have not opted education. You have not availed, taken any education loan. What about others? What about others? Now there are 65, around 65 students are present in our class. Very good. बोलो भाई, फिर मेरे को वही फिर आपके साथ करना पड़ेगा, एक एक का नाम लूंगा और उसकी फिर मेरे से भी चाहते हो मैं सबकी अटेंडेंस एब्सेंट के लिए बोल दूं? उनको ऐसे बोलते नहीं हो आप लोग। ऊपर से नाम लेना शुरू कर रहा हूं फिर मैं भी। आयुषी नेगी, भावना तोमर, देविया मेहता, दीपशिखा कुमारी, देवेश कुमार, दिव्या भारती, हर्ष गुप्ता, हर्षिता आहूजा, जसमीत कौर, जयदीप कुमार सिंह। किसी ने एजुकेशन लोन लिया हो और मुझे बताइए आपकी इंस्टॉलमेंट अभी स्टार्ट हो गई है या तब स्टार्ट होगी जब आप देने के लिए? जब स्टार्ट होगी बाद। अच्छा, जब आप अर्निंग करेंगे उसके बाद स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा आप। ये कौन बोल रहा है? सर हाँ सर, नीलेश सर। हाँ नीलेश, हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? सर जैसे स्टार्ट, जैसे मास्टर हो जाएगा उसके बाद से 6 महीने का ड्रॉप टाइम है, उसके बाद से स्टार्ट होगा। अच्छा, जैसे ओके, उसके 6 महीने बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी आप अपनी इनकम से रिड्यूस कर सकते हो। तो आप अपना टैक्स जीरो कर सकते हो इस तरह से, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। एक और जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले आई वाज टेलिंग यू, नेशनल पेंशन स्कीम, मैंने बताया था ना, एक नेशनल पेंशन स्कीम CCD1B होती है। तो टैक्स रिड्यूस करने का कैसे बताया, मुझे समझ में नहीं आया इसको। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन ही दिखा तो रहा हूँ सारे। लेट अस से एक बार और ये करते हैं। लेट अस, ये हमने रिड्यूस किया है ना, पहले हमने उसका 1.5 लाख रिड्यूस किया है। अंडर सेक्शन 80C में उसने इन्वेस्ट किया था। लेट अस से उसने लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया था, उसने PPF में जो उसका पैसा कट रहा है ये हमने करके आपको दिखाया ना। अभी उसने 1,79,000 पहले दे रहा था, 1,79,000। लेट अस assume ये हमने लेस डिडक्शन किया ना। लेट अस assume दैट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E एजुकेशन लोन में उसने इंटरेस्ट, मैं एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका एक्चुअल इंटरेस्ट गया है साल भर में। लेट अस से आपका इंटरेस्ट साल भर में गया है 30,000 का, मैं 25,000 ही मान लेता हूं। चलो 25,000 रुपया इंटरेस्ट भी गया, तो ये 25,000 भी डिडक्ट हो जाएगा। तो उसकी टैक्स इनकम कितनी आई थी? 12 लाख में से हमने पहले रिड्यूस किया था 1,75,000। तो अब हम क्या करेंगे, 2 लाख हो गया एक तरह से। तो 12 लाख में से 2 लाख गए, ये 25,000 भी गया, तो 10 लाख रुपया पे उसका टैक्स असेसमेंट होगा। टैक्स कैसे रिड्यूस होगा? पहला 2.5 लाख इज 0% 0, नेक्स्ट 2.5 लाख 5% 12,500, नेक्स्ट 5 लाख 20% 1 लाख, ये 25,000 बचा ही नहीं है। सो दिस स्लैब
स्लैब जो है हमारा हट गया, स्लैब हट गया, तो टोटल कितना, तो टोटल उसका टैक्स कितना बना, 1,12,500 कम हो गया ना टैक्स, कम हो गया ना टैक्स ये। तो धीरे धीरे एक स्लैब आप जैसे से लेस करे जा रहे हैं उसका टैक्स अब कहाँ 1,79,000 था, कहाँ 1,12,500 हो गया। सर टैक्स रिड्यूस करने के लिए तो हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा ना। जी सर, तो यही तो सब लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, और क्या है ये जो मैं बता रहा हूँ, यही तो है प्रोविजंस। ओके, These are the provisions available। इस 80C में जो मैं आपको बता रहा था, इस 80D is for health insurance plan, ये तो एक फिक्स है। 80 is for education loan अगर किसी ने लिया है। 80C में जो मैं आपको दोबारा ये दिखाता हूँ स्लाइड, 80E में बहुत सारे ऑप्शन है। 80E में आप बाउंड नहीं हो किसी भी एक चीज में। 80E में आपके पास एक म्यूचुअल फंड की स्कीम भी है, आ गया हूँ, ये है म्यूचुअल फंड की, लेकिन एक ही स्कीम है सारी। म्यूचुअल फंड हैज गॉट hundreds of schemes, but only one scheme called ELSS. This is called tax saving scheme. Only if you invest in this scheme, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, उसका डिडक्शन नहीं मिलता है आपको। ये स्पेसिफाइड है स्कीम्स, ये सारी लॉन्ग टर्म है स्कीम्स। NSC फॉर 5 years, PPS फॉर 15 years, EPF इज स्टिल योर रिटायरमेंट, जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपका चलता रहता है प्रोविडेंट फंड। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये भी 5 साल की होती है। फिक्स डिपॉजिट 5 साल की है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड करता है, ये भी मिनिमम तो 5 साल का प्लान होता ही होता है लाइफ इंश्योरेंस का। इट डिपेंड्स, 20 साल का भी लेते हो आप, 30 साल का लेते हो, ये डिपेंड करता है। पेंशन स्कीम्स भी जब तक बंदा रिटायर होता है तब तक चलती हैं, सारी लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू कि हाउ यू आर रिड्यूसिंग योर टैक्स आउटगो। हाँ, प्लस एक और जो अभी कॉमन स्कीम है जो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है, दिस इज लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। एक ऐसी स्कीम है, दिस इज फॉर, ये कौन सी स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन scheme, which is a self-run account, which is your self-run account। अगर इसमें गवर्नमेंट ने इसमें देखो एक बड़ा अच्छा किया है, इसमें अलग से आप अपना ही एक नेशनल पेंशन स्कीम में आपका अपना सेल्फ रन अकाउंट है। इसमें अगर आप साल में 50,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो, जो कि मैं करता हूं हर साल, तो फर्दर आप लेस डिडक्शन कर सकते हो इस 10 लाख में से भी। तो आपका बचा था ये सब 12 लाख में, ये 2 लाख तो ये आपने लेस कर दिया ये इन्वेस्ट कर करके। ये भी अगर आपने, तो आपका कितना होगा टैक्सेबल इनकम, 9.5 लाख बच गई। तो 9.5 लाख में आप स्लैब रेट लगाओगे, पहला 2.5 लाख इज 0%, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट अब 5 लाख नहीं 4.5 लाख, आप 30% पे तो पहुंचे ही नहीं है। और ये भी आपका नेक्स्ट 4.5 लाख एट द रेट ऑफ 20%, तो 4.5 लाख का 90,000 रुपया हो गया ये 90,000। तो 90,000 प्लस 12,500, तो आपका टैक्स कितना बन गया, 1,02,500। तो देखो आपने कहा सीधे कहा, अगर हम ओरिजिनली इस बंदे ने पूरे 12 लाख रुपया खर्च कर दिए, तो ये बंदा दे रहा था विदाउट सेस 1,72,500, यानी सीधे 70,000 बंदे ने बचा लिए इसने। अब दे रहा है ये 1,02,500, तो सीधे 70,000 रुपये तक इसने अपने सेव कर लिए बाई सेविंग 2.5 लाख। 12 लाख में अभी भी हैं, 1-2 स्कीम्स हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक हैं, वो सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये सबके ऊपर अप्लाई होती हैं। जो मैंने 3 स्कीम ली है ना, ये
हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है। 80C हम सब अप्लाई कर सकते हैं, 80D हेल्थ इंश्योरेंस सबको जरूरत होती है, 80E हर एक पर एप्लीकेबल नहीं होती। अब जैसे मेरे जैसा केस है तो मैं किसके ऊपर अप्लाई करूंगा, या किसी के बच्चे एजुकेशन पूरी कर ली है या एजुकेशन लोन नहीं लिया है तो वो अवेल नहीं करेगा ना, तो ये स्कीम सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। 80CCD एप्लीकेबल हो सकती है, आपको लेना चाहिए पेंशन प्लान अपने लिए, ये मैं बिलीव करता हूं। अगर आप यंग हैं तो पेंशन प्लान में आपका पैसा जाना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो ये 25,000 निकाल देते हैं तो 1,75,000 रुपया, 50,000 ये 25,000 ये, या 1.5 लाख तो कर ही सकता है ना। मैं कहता हूँ 25,000 जबरदस्ती थोड़ी दूंगा मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, अगर मेरे को 5-7 हजार रुपए का मेरे को अच्छा प्लान मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ही लिया हुआ है एक, अभी मैंने 5 लाख का एक प्लान लिया है, 12.5 लाख रुपए का मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया है। उसमें मेरा, हाँ, क्योंकि एज के हिसाब से प्रीमियम बढ़ता है ना, तो अब हमारा हो गया है 20-25 हजार रुपया हमारा हो गया है। तो 1.5 लाख तक तो कर ही सकता है ना बंदा इन्वेस्ट। तो ये what I want to say is that इस slab rate में you can avail all these deduction, but in this slab rate you cannot avail all these deduction। ये flat rates है, इसमें इतना टैक्स देगा ही देगा, 1,30,000। यहाँ इतना सब कुछ सेव करने के बाद कितना दे रहा है ये, 1,02,500 प्लस इसमें सेस भी जुड़ेगा, ये समझ लो आप। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू अ ब्रीफ दिस थिंग। सो वन बाय वन हमने इन सबको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की थी यहाँ स्कीम में, इस वाले। मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। यस यस सर, इसमें अगर बॉन्ड और अगर ये लेते हैं, मतलब एफडी करवाते हैं, तब भी इसमें टैक्सेशन तो सेविंग हो सकता है ना, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हो गया सर। हाँ, मैंने बताया ना अभी आपको, ये वाले इस स्लाइड में दिखाया ना आपको, इस स्लाइड में ये आप देख लो ना कौन कौन सी चीजें हैं। ऐसे बॉन्ड हर बॉन्ड में नहीं है, बॉन्ड्स नहीं है इसमें शामिल, एफडी है, ये एफडी है। ये देखिए जहां मेरा कर्सर है, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एफडी, वो भी 5 साल की होनी चाहिए। 5 साल से कम की अगर एफडी कराइए तो अब नहीं मिलेगा आपको डिडक्शन। बॉन्ड्स नहीं है शामिल इसमें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी शामिल नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में मैंने अगेन आई एम रिपीटिंग, म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक स्कीम है ELSS, इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर इसमें आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको ये 80C में आएगा, तभी डिडक्शन मिलेगा। बाकी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सब डिडक्शन नहीं है। इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव फॉलोड the model of the Western countries also. In Western countries, all these savings and all these things are not allowed. And even today, there are certain people who don't believe in all these instruments, because these are all long-term instruments, EPF. You may be a businessman. You don't want to invest in all these. You want to invest in shares. You want to invest in properties, which are risky instruments, but which can give you high returns. So you don't want to avail all these tax benefits. So you want to go for that flat rate. So you can go straight away with this flat rate, which I just showed to you. So this is the flat rate. Sorry. So that is why we are writing, if you are not claiming any deductions or exemptions, then this is the simple flat rate. After every 2.5 lakh, your tax rate increases by 5%. So 5, 10, 15, 20, 25 and 30. So then this will apply to you. So therefore, very quickly to repeat, so just for a quick recap, so this is another slide. You are seeing your slide, deduction from gross total income. So this is provided by Income Tax Act. Deductions are permissible amount by which the gross total income is reduced to arrive at the total income liable to tax. So deductions, what are deductions? They are intended to act as incentive to the assessee. Assessee is the person who is being assessed for achieving certain economic objectives. So by these deductions, what happens that, for example, I am the assessee.
So not only my future economic objectives will be attained, even the government invest this money to remove its fiscal deficit. Government also uses this money, for maintaining law and order, for developing the infrastructure of the company. So number one, so there are various deductions. So the aggregate amount of deductions under section 80C to 80U cannot exceed gross total income. And rule 2 is that these deductions are to be allowed only if the assessee claims these and gives the proof of such investment or expenditure or income. So when we are filing our income tax returns, we have to give the proof that yes, I have invested in PPF, I have invested in NSC, I have bought a life insurance plan or health insurance plan. So we have to have the proof for the receipts of these. Then only we can claim these deductions. So category of deduction, or you can say what is the aim of these deductions, to encourage saving and investment, so that people will start saving to save their taxes, and to contain for certain personal expenditure also, like housing loan, because house is a basic necessity for people. So therefore government has said that whatever you pay, whatever principal amount you pay, that also can be availed as deduction. Then there are certain sections for physically disabled persons also. 80C I just explained to you, applicable only to individual and HUF. For example, I just showed you in another slide what are the schemes under 80C: life insurance premium paid, if contribution of employee to statutory provident fund and recognized provident fund or EPF, or contribution into 15-year EPF, or approved superannuation plan or pension plan. Pension plan is also known as superannuation plan. Or if you have invested in National Savings Certificate from Post Office NSC, or you have invested in ELSS scheme of mutual fund, or you have put some money for the girl child in Sukanya Samriddhi Yojana, or if this is applicable for senior citizen savings scheme, or you are paying EMI of housing loan and the principal amount, or you are paying tuition fees up to 2 children, or you have invested in 5-year fixed deposit of any bank or post office. Maximum amount is 100% of amount invested, और maximum is 1.5 lakh. अगर आपने सबको मिला के सिर्फ 50,000 इन्वेस्ट किए तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, विच एवर इज लोअर. 80CCC स्पेशली पेंशन प्लान्स के लिए होता है. कहीं से भी आपने पेंशन प्लान लिए हैं, सो बट दिस सेक्शन हैज बीन मर्ज्ड विद सेक्शन 80C, सो लिमिट वही 1.5 लाख के अंदर है इसकी. देन 80CCD is national pension scheme of central government. So if you are an employee of central government, so a deposit made under a pension scheme notified by the central government, whatever your amount is deducted, that you can claim. So this is over and above 80C, but if you have no deduction must have been claimed under section 80C. So an amount received from the scheme is taxable in the hands of the assessee. So what is the amount of deduction? Is aggregate of amount deposited by the employee and the central government, or 10% of the salary. तो 10% ऑफ आपकी सैलरी का ये और आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं. टोटल लेकिन हाँ सॉरी, सबका टोटल जो है वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए. 80D मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, एनी प्रीमियम पेड अंडर सेक्शन 80D. So here 25% in the case of others and 50% in the case of senior citizens. 80DD, this is another section for disabled and dependent family member. अगर किसी की फैमिली में कोई डिसेबल्ड मेंबर है, so expenditure incurred on the medical treatment and the amount paid or deposited under any scheme framed by LIC of India or any other insurer for the payment of an annuity or a lump sum amount for the benefit of such dependent. किसी के परिवार में गवर्नमेंट बोलती है यार, किसी के परिवार में अगर कोई हैंडीकैप पर्सन है, डिसेबल्ड पर्सन है, उसके मेडिकल में बड़ा खर्चा होता है, या उसका लिए कोई इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है,
तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इतनी दयालु है, गवर्नमेंट सिंपैथी के तौर पे आपकी उस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करेगी। तो वो कहती है आप उसका मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा या उसके ऊपर जो आप इंश्योरेंस लेते हैं उसका जो खर्चा है उसका लिमिट क्या है, 75,000 रुपया, 75,000 इन द केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटीज। इसके भी गवर्नमेंट ने वो बनाए हुए हैं, नॉर्म्स बनाए हुए हैं। नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000 रुपया और सीवियर डिसेबिलिटी में 1.25 लाख रुपया आप डिडक्शन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एंड उसके लिए करना क्या होगा, एसएससी शैल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। डिपेंडेंट मींस द स्पाउस भी हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, सिबलिंग्स इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स और एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन द केस ऑफ HUL. Person with severe disabilities means a person suffering from 80% or more of one or more disabilities. जो disabled किसी की फैमिली में है अनफॉर्चुनेटली, तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन है। एक और है, एक सेक्शन 80DDB। इसमें क्या है, अगर किसी की फैमिली में किसी को पार्किंसंस डिसीज हो जाए या कोई कैंसर हो जाए या एड्स हो जाए या क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाए, तो उसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा डिडक्शन आप ले सकते हो। तो एक कॉपी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, तो उसका खर्चा जो भी हो रहा है या उसका इंश्योरेंस ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, 100% ऑफ द एक्सपेंसेस सब्जेक्ट टू, ये मैं 60,000 इन फाइनेंशियल ईयर एंड 1 लाख, ये अभी 1920 अभी जो ईयर गया है इसमें 1 लाख है, और अभी नए साल में भी 1 लाख ही है। 1 लाख रुपीज तक आप उसका अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये एक एक्स्ट्रा डिडक्शन है। आर यू ऑल विद मी? यस सर। ओके, तो ये मैं आपको इसलिए मैं बता रहा था 80E I have already explained you, this is for education loan, so any amount paid by way of interest on loan taken from any financial institution or any approved charitable institution for higher education. So amount is paid out of his income chargeable to tax. So higher education means this is for higher education, not for school education. Remember, it means full-time studies for any graduate studies or postgraduate course in engineering, medicine, management, or postgraduate course in applied science or pure sciences, including mathematics and statistics. So the deduction shall be allowed for the financial year in which the SSC starts repaying the loan or interest thereon, and 7 years immediately succeeding it, or until the loan together with interest thereon is paid by the SSC in full, whichever is earlier. तो बेसिकली 8 साल तक वो उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता है। So actual interest paid इसमें there is no limit, with no limit. That is why, you know, students who get into IIMs, these students may be from very poor families also, but उसके अंदर क्या है, ये लोग लोन ले लेते हैं। IIMs फीस इज वेरी हाई, लेकिन बाद में उनको जॉब भी मिल जाती है, 15 लाख की 20 लाख का पैकेज मिलता है सीधे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर लेते हैं, उसमें डिडक्शन में ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली इनकम टैक्स उनकी लायबिलिटी भी कम रह जाती है। एक और है सेक्शन हमारे यहाँ 80GG। व्हाट इज दिस? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ paid for non-salaried person or a salaried person not getting HRA from the employer. अच्छा, ये एक्चुअली क्या है कि अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं और आप किराए के मकान में रह रहे हैं, लेट अस से आप कोई भोपाल के रहने वाले हैं या पटना के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, आपने गुड़गांव में कोई स्टार्टअप शुरू किया और यहाँ आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उसमें एलिजिबल अमाउंट इज एनी एक्सपेंडिचर incurred by him on payment of rent in excess of 10% of his total income. इसमें amount of deduction देखिए फॉर्मूला है, the amount of deduction under this section will be least of the following: excess of actual rent paid over 10% of the adjusted gross total income. ये मैंने कोई एग्जांपल लिया हुआ है एक्चुअली इसमें। लेट अस से आपकी कोई चलिए मैं आपको फॉर्मूला, फिर अभी एक्चुअली टाइम भी नहीं है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर है एक सेक्शन
बेसिकली आप ये समझिए ये सेक्शन 80 जीजी है रेंट के लिए और नॉन सैलरीड एम्प्लॉय। 80 यू इज डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद सीवियर डिसेबिलिटी। ये एक और इन्होंने एक सेक्शन बताया विद वेरी सीवियर डिसेबिलिटी को डिफाइन किया है इन्होंने। सो एलिजिबल अमाउंट इज इसमें भी वही है 75,000 in the case of person with disability and 1,25,000 in the case with severe disability। तो disability एक दूसरे तरह की disability है, इसमें भी एक deduction है। So therefore conclusion we are saying under the Income Tax Act, first of all income under each head is computed। each head इसमें 5 head है, ये भी मैं आपको next time बताऊंगा। एक होता है income from salaries, एक होता है income from business and profession, third head is income from any property, and fourth head is income from capital gains, and fifth head is income from miscellaneous sources or other sources। इन सबको आप ऐड करेंगे तो this is called aggregate of income from each head is known as gross total income। Then out of this gross total income certain deductions are allowed which we have discussed today। So income after such deductions is called gross income। So the total deduction from section 80C to 80U cannot exceed the total income। Thank you। Now I invite very quickly any questions। Yes, now I invite any question, any quick questions regarding this, because I felt that this is very necessary to understand the deductions and these slab rates। Did you find the session useful today or not? Yes sir। Yes, sir. Yes, sir. ये आपको लगा होगा ये such all these things we knew and it was not required, या कितने लोगों को लगता है नहीं it was required all these sections and all? सर इनमें कुछ चीजें जानते थे बट आपने थोड़ा डिटेल में बताया। अच्छा थोड़ा डिटेल, चलिए गुड। तो now my last few words, I have been, अभी तक तो ये नया स्लैब था ही नहीं। अब तो ये जो नया फाइनेंशियल ईयर आया है इसमें ये नया स्लैब जो है विदाउट डिडक्शंस, जिसके अंदर आपको कोई एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेंगे बट फ्लैट रेट दिया है गवर्नमेंट ने, ये अब इस साल एप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट ईयर जब हम अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तब के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी इस साल भी हमने अपनी रिटर्न भरनी है 1920 की, उसमें तो ये सारे एग्जेम्पशंस हैं। तो मैं क्या करता हूँ फ्रॉम द पास्ट 16 ईयर्स, बल्कि ज्यादा ही हो गए यार, 20 साल ही हो गए होंगे, 18-19 साल से आई हैव बीन अवेलिंग 80C बेनिफिट्स। तो मैं 1.5 लाख रुपया मैं सीधे अपनी इनकम से लेस मेरा हो जाता है। तो उसमें एज फार एज आई एम कंसर्न, तो मैं उसमें 1.5 लाख रुपया अपना पीपीएफ में डालता हूँ और बाकी 10,000 रुपया मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्लान में जाता है, तो 1,60,000 ही हो जाता है। बट मेरे को एक्सेप्शन, आप भले ही 2 लाख कर रहे हैं स्पेंड उन सारी स्कीम्स में 80C की, या उससे ज्यादा कर रहे हैं, आपको एग्जेम्पशन जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख का ही मिलेगा। तो 1.5 लाख वो मैं एग्जेम्पशन ले लेता हूँ। 50,000 रुपया मैं हर साल पिछले 8 साल से मैं 50,000 रुपया अपने नेशनल पेंशन स्कीम में डाल देता हूँ। तो 2 लाख रुपया हो गया, 1.5 लाख प्लस 50,000 रुपया 2 लाख हो गया। और 20-25,000 रुपया ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेता हूँ मैंने। इस साल मेरा 25,000 हो जाएगा, इस साल मैंने बढ़ाया अपना प्लान, और पिछले साल तक मेरा 15,000 रुपया मैं अवेल कर देता था। तो इस साल मेरा कितना हो जाएगा? सर ये नेशनल ये जो पेंशन स्कीम है सर, ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट के से क्या चलाई जाती है, कोई प्राइवेट बैंक से भी ले सकते हैं? ये देखो, इसको एक जैसे बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी इज द रेगुलेटर फॉर कैपिटल मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स, IRDA is a regulator for insurance sector, RBI is a regulator for banks. Similarly, PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority, is the regulator for these pension schemes. NPS जो है PFRDA चला रही है। तो बट उसने क्या किया है, PFRDA ने बहुत सारे फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में फंड मैनेजर्स होते हैं और आपके म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर्स होते हैं। इसने कुछ कंपनीज को एम्पैनल किया है, जिसके अंदर SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेंशन फंड्स कंपनी है, तो वो भी एक अलग से पेंशन फंड चला रही है। ICICI प्रूडेंशियल है, कोटक है,
रिलायंस है जो कि अब निप्पॉन हो गई है। तो ये सब कंपनीज जो हैं, यूटीआई है, इन सबको एम्पैनल किया है, अपॉइंट किया है कि आप हमारा पेंशन फंड चलाइए इसकी। और फिर एज ए इंडिविजुअल जब मैं अपना फॉर्म भरता हूँ, अपना अकाउंट खोलता हूँ एनपीएस का, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किससे अपना फंड मैनेज कराना चाहता हूँ। तो मैंने उस टाइम जब 9-10 साल पहले जब अपनी स्कीम स्टार्ट की थी, तो मैंने एसबीआई चूज किया था, तब से वही चल रहा है। तो एसबीआई, उसमें भी आप कंपेयर कर लीजिए कि किसका कितना रिटर्न दिया है, और उसमें भी 3 ऑप्शन मिलते हैं इसमें। एनपीएस एक पहला, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ स्कीम wherein for the first time you can opt for equity, how much you want to your money to be invested in equity, how much you want to be invested in corporate bonds, and how much you want to be invested in government securities. तो उसमें बहुत सारे परसेंटेज हैं। तो 50% मैंने अपना परसेंटेज दिया हुआ इक्विटीज में, और 30% मेरा जाता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, और 20% मेरा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। वो अपने आप एलोकेशन है, अब जब चाहे उसको चेंज करा सकते हैं अपने एलोकेशन। जब आप देखें इक्विटी मार्केट्स, तो मैं हर साल 50,000 ही डालता हूँ उसमें। सर जब हम इतना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर ही देंगे कि ईपीएफ में भी डाल रहे हैं, एनपीएस में भी डाल रहे हैं, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो फिर हम इतना वेल्थ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम अगर अपने बेसिस पे इक्विटी या डेट पे इन्वेस्ट करना चाहें, वो तो हो ही नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे ही नहीं। अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर मैं इक्विटी मार्केट में जाना चाहूंगा, मेरे पास तो पैसे बचेंगे नहीं इतने स्कीम्स और टैक्स वो अवॉइडेंस और ये एग्जेम्पशंस के बाद। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये भी तो वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट ही है। जो आप अगर एनपीएस में जमा करा रहे हो, पीपीएफ में जमा करा रहे हो, दिस इज पार्ट ऑफ द वेल्थ मैनेजमेंट ओनली। तो जितनी वेल्थ है उसके हिसाब से तो इन्वेस्ट करोगे। जो आप कह रहे हो वो भी आप सही कह रहे हो, जिसके पास जितनी पैसा है, ऐसा नहीं है वेल्थ मैनेजमेंट इज ओनली फॉर पीपल, सुपर रिच पीपल। वेल्थ मैनेजमेंट जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इट्स नथिंग बट फाइनेंशियल प्लानिंग। और मैंने इसके ऊपर कोर्सेज किए हुए हैं बड़े इंटरनेशनल, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं इसके, वेल्थ मैनेजमेंट और ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। तो अगर मेरी इनकम अगर 5 लाख 6 लाख रुपया है, तो मेरे लिए ये वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। तो जो आप कह रहे हो वो भी आप सही कह रहे हो। उतने पैसे शेयर मार्केट में नहीं बचेंगे, लेकिन आप एनपीएस के थ्रू करो ना, फिर शेयर मार्केट में उसमें इक्विटी का अपना पोर्शन ज्यादा कर दो, एलएसएस में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में एक्सपोजर तो हो गया ना आपका। यस सर, यस सर। इक्विटी में एक्सपोजर होना चाहिए, डायरेक्टली एक्सपोजर या इनडायरेक्टली एक्सपोजर है। म्यूचुअल फंड इज एन इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू इक्विटीज। तो वेल्थ मैनेजमेंट में हम ये भी पढ़ाते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में कि जो बंदा, उसका रिस्क एपिटाइट भी देखना है। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू टेक एनी रिस्क, हम जबरदस्ती उसको ये थोड़ी बोल देंगे जा तू क्रिप्टो करेंसी में कर। क्रिप्टो करेंसी पहली बात तो इलीगल है इंडिया में। ये सर लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं है। दूसरा, इट्स हाईली वोलेटाइल। तो हम अपना पैसा डेट से भी बना सकते हैं इन अ लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि इक्विटी से ही पैसा बनता है, but there has to be a disciplined approach. So no one strategy works for all the people. So once shoe fits all strategy नहीं चलती wealth management. If you are tomorrow you are a wealth manager in a bank or in a wealth management company, तो आपको हर client आपका अलग अलग है. You have to customize it according to the clients. उसकी कितना risk taking है, कितना उसकी family size क्या है, वो कितना risk ले सकता है, उसकी अभी इनकम कितनी है, उसके ऊपर रिस्क कितने हैं, तो हर आदमी डिफरेंट है। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरा, बट वो थोड़ा कौन, कमलेश बोल रहे हो ना तुम? कमलेश बोल रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ हाँ बताइए सर। वो एक्चुअली मेरे को किसी ने ना रेकमेंड करा था कि सीएफए के पेपर दे सकते हैं हम। हाँ। तो सर मेरे को पूछना था सीएफए के लिए सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्योंकि सर मैं इंजीनियर हूँ और अभी मैंने फाइनेंस से मेरा एक्सपोजर हुआ है। तो अगर मैं सीएफए के पेपर दूंगा तो सर वो कैसे देते हैं और सर प्रोसीजर क्या होगा सर, एक बार ब्रीफ। सीएफए का देखो, मैंने खुद सीएफपी किया हुआ है। मैंने आई एम अ सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो वेल्थ मैनेजमेंट में जरूरत होती है। सीएफए जो होते हैं दे आल्सो स्टडी कंपनी एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस एंड ऑल। वो थोड़ा सा और डिटेल्ड होता है। तो आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है, ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड वेदर यू आर अ साइंस ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। क्योंकि मैंने सीएफपी ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग किया है। आई आल्सो केम फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एज यू ऑल नो। तो मैं भी एक इंजीनियर था।
तो मैं तो धीरे धीरे फाइनेंस में घुसता चला गया, मेरे को इंटरेस्ट आता चला गया, तो मैं ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ता चला गया। टैक्स वगैरह, मैं आज आपको टैक्स पढ़ा रहा हूँ और दुनिया को मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स के मैंने इतने सेशन लिया, मैं आई वाज जीरो इन ऑल दीस थिंग्स फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ माय करियर। इसके बाद आई मेड अ सेकंड, मैंने अपने आप को सारा पढ़ा, सेकंड करियर एक तरह से बनाया। तो कर सकते हो, मेरे ख्याल में यू आर मोस्ट एलिजिबल। ग्रेजुएशन तो है ही है, और कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि इवन 12th के बाद भी कर सकते हैं। ये आप चेक कर लेना, तो आप तो हो ही हो एलिजिबल, देयर इज नो डाउट इन। ओके सर। ये है कि और आपको मतलब सरप्राइज होगा, जितने म्यूचुअल फंड्स में जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, इतने बड़े बड़े फंड्स मैनेज कर रहे हैं 50,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ के, दे आर बेसिकली इंजीनियर्स। उसके बाद उन्होंने एमबीए कहीं फाइनेंस में घुस गए हैं। इंजीनियर्स के साथ एक बेनिफिट ये होता है, शुरू में तो उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको जीरो होते हैं वो फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, लेकिन उनके साथ बेनिफिट ये होता है, दे आर इजी विद नंबर्स बिकॉज दे हैव स्टडीड लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो वो बड़ी जल्दी पिकअप भी कर लेते हैं। यस सर, ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तो वो बहुत जल्दी पिकअप भी कर लेते हैं। शुरू में प्रॉब्लम होती है तो उनका लर्निंग कर्व जो होता है शुरू में स्लो होता है बड़ा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, बट वो बहुत जल्दी फिर पिकअप करते हैं। शायद मैंने भी इसी तरह शायद पिकअप किया होगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। वी हैव हैड अ गुड सेशन। 1.25 घंटे का सेशन हो गया है हमारा। So we have exceeded our time by 15 minutes. So I think the session would be useful, और काफी there have been practical tips also to you people. So we will continue in the next session. Okay, let me stop my recording now. Okay, thank you. थैंक यू सर।